अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। Respected brothers and sisters, Insha'Allahul Azim, in our series of Ramadan with Al-Quranul Kareem, in the tafsir today, Insha'Allahul Azim, we will be listening to the story of Sayyidina Nuh alayhi salam. In the light of Al-Quranul Kareem, let's see what Quran says about this story and how can we get our inspiration from this story and what are the lessons we can learn from this great story which Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in many places in Al-Quranul Kareem. Allah ta'ala की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें हक़ कहने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। Allah subhanahu wa ta'ala says in Al-Quranul Kareem, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. And indeed we sent Nuh to his people that indeed I am for you a clear herd of warning. It is a warning Allah subhanahu wa ta'ala has issued through Sayyidina Nuh alayhi salam to these people, and Allah subhanahu wa ta'ala said them, you shouldn't worship the idols, you should worship the one who created you. दरअसल जब सैयदना आदम अलैहि सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, एंड देन व्हेन ही पास्ड अवे, जब इनका इंतकाल हुआ, उसके बाद द पीपल दोज हुआ फ्रॉम द फैमिली ऑफ सैयदना आदम अलैहि सलाम, उनकी औलाद में से जो लोग थे, जैसे कि पूरी कायनात हज़रत आदम अलैहि सलाम की औलाद में है, तो आफ्टर दैट दे स्टार्टेड वर्शिपिंग आइडल्स। एक लंबे वक्त के बाद उन्होंने बुतों को पूजना शुरू कर दिया। दे वर फेमस फ्यू पीपल्स जिनका जिक्र कुरान ने मेंशन किया है, यगूस, नसूक, नसर वगैरह, इन लोगों के उन्होंने पुतले बनाए, एंड देन दे स्टार्टेड वर्शिपिंग देम एंड दे फॉरगेट वर्शिपिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो वो शिर्क का शिकार हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहि सलाम को भेजा, एंड दिस स्टोरी ऑफ सैयदना नूह अलैहि सलाम अल्लाह हैज़ मेंशन इन अल-कुरानुल करीम इन मैनी प्लेसेस। कहीं तफसील से इसको बयान किया गया और कहीं इजमालन इसको बयान किया गया, कहीं बहुत ज़्यादा वजाहत के साथ इसको बयान किया गया। स्पेशली इन द सूरत हूद, इन द सूरा ऑफ हूद, सूरह हूद में इसे तफसील के साथ बयान किया गया है। सो वी विल लिसन टू दिस एंड विल अंडरस्टैंड। वो जो तूफ़ान आया था हज़रत नूह अलैहि सलाम का, जिसमें पूरी दुनिया बह गई थी, पूरी दुनिया, नथिंग लेफ्ट एक्सेप्ट द बोट, द शिप ऑफ सैयदना नूह अलैहि सलाम, जो हज़रत नूह अलैहि सलाम ने कश्ती बनाई थी। उस कश्ती के अलावा द आर्क विच वॉज बिल्ड बाई सैयदना नूह अलैहि सलाम, एक्सेप्ट दिस आर्क every single thing which were exist in the world were drowned in this tufan. Inshallah we will listen to this, how Quran has mentioned it, Quran ने कैसे इसको बयान किया है, हम उसे देखते हैं। Then when Nuh alayhi salam came to these people, he said, Allah ta'budu illallah inni akhafu alaykum adhaba yawmin alim, that you must worship none except Allah. Indeed, I fear
the punishment of the calamitous day upon you. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. The chiefs of his people who were disbelievers said, "We see that you are just a mortal like us, and we do not see anyone following you except the most lowly among us, without insight. And we do not find any merit in you above us. In fact, we consider you liars." Allahu Akbar. जब नूह अलैहि सलाम ने उनको दावत दी, they didn't only denied the dawah of Sayyidina Nuh alayhi salam, they disrespected him. They started to insulting them. They started to insult Sayyidina Nuh alayhi salam and the followers of Nuh alayhi salam. जब हज़रत नूह alayhi salam ने दावत का आगाज़ किया तो बहुत ही गरीब तबके के जो लोग थे, the people those who are not the wealthy people, the poor people, they started following Sayyidina Nuh alayhi salam. उन्होंने हज़रत नूह अलैहि सलाम की बातें मानना शुरू की, आपके अक़वाल को तस्लीम करना शुरू किया, and they believed in it and they believed in Allah subhanahu wa ta'ala. जब there was a group of a very short people, a very few people, चंद लोगों का गिरोह था, उन्होंने जब हज़रत नूह अलैहि सलाम की बात मानना शुरू की, then the wealthy people, the leaders, those who are the stakeholders at the time, they used to laugh. वो हंसना शुरू किया उन लोगों ने हज़रत नूह अलैहि सलाम पे और आपकी कौम पे और जो लोग आप पे ईमान लाए थे. And they started to say, look at these people. देखिए इन लोगों को, इनके पास ना पैसा है, ना माल है, ना दौलत है, इनके पास कुछ नहीं है, और ये जो है नूह अलैहि सलाम की पैरवी कर रहे हैं, तो आपको हमारे ऊपर कोई ऐसी फौकियत नहीं है. इस तरह की बातें उन्होंने करनी शुरू की. Then Quran says what happened later on. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned, قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Allahu Akbar. He said, "O my people, what is your opinion? If I am on a clear proof from my Lord and He has bestowed mercy upon me from Him, so you remain blind towards it, shall we force it upon you, although you dislike it?" Although you dislike it. Nuh alayhi salam said, "Look, why are you arguing with me? I came from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala has given me the proof. Allah ने मुझे भेजा, Allah ने मुझे दलील दी, तो तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो? I am just passing the message which Allah sent to me. I am passing this message to you. Allah ने जो पैगाम मुझे दिया, वो मैं तुम तक पहुंचा रहा हूँ. तुम मुझसे क्यों लड़ते हो?" That's what Sayyidina Nuh alayhi salam said. And then again he elaborated it. थोड़ी सी तफसील उन्होंने और की. कुरान कहता है, وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. Then they started asking Nuh alayhi salam. They started to ask Nuh alayhi salam, okay, if you want us to follow you, अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपकी पैरवी करें, तो आप ऐसा करें कि ये जो गरीब लोग हैं, these are the poor people, just turn them back, आप उनको वापस कर दें, आप उनको अपने यहाँ से भगा दें. तो हज़रत नूह अलैहि सलाम ने कहना शुरू किया कि how can I do this? I am not allowed to do this. I am not allowed to do this. That's what he is mentioning here. वो बता रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ईमान लाने वाले उन गरीबों को मैं अपने से दूर कर दूंगा, तो what will I answer in the court of Allah subhanahu wa ta'ala? तो मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? So it says, as it shows us, this ayah very clearly indicates, ये आयत हमें समझाती है कि if you believe in Allah subhanahu wa ta'ala, even though you are a poor person, you don't have money, you don't have wealth, you don't have bank balance, but if you believe truly in Allah subhanahu wa ta'ala, अगर आप हकीकी तौर पे अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, तो आप गरीब ही क्यों ना हो, तो अल्लाह की नज़र में आपका मर्तबा उन हज़ारों अमीरों से बड़ा है जिनके पास दौलत तो है लेकिन वो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते.
You will be better than these wealthy people, those who have billions and millions of pounds and dollars, but they do not believe in Allah subhanahu wa ta'ala. When, if you truly believe in Allah subhanahu wa ta'ala, even though you don't have money, because the money, it comes and goes. पैसा आता है जाता है, दौलत आती है जाती है, दौलत की कोई हैसियत तो नहीं है, इट इज़ जस्ट ए नीड, ये ज़रूरत है और वो आती जाती रहती है। लेकिन हकीकत में व्हाट मेक यू ए गुड पर्सन नियर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इट इज़ योर फेथ, योर बिलीव, योर मेंटालिटी, योर आइडियोलॉजी, योर थिंकिंग एंड योर एफर्ट्स एंड योर एक्शंस। आपके अमाल, आपकी सोच, आपका अकीदा, आपकी फिक्र, आपके इरादे, ये आपको अल्लाह की निगाह में बुलंद करते हैं। देन व्हाट ही सेड, कुरान सेज, एंड ओ माय पीपल, I do not ask any wealth from you. I do not ask any wealth from you for it. My reward is only upon Allah, and I am not going to repel the Muslims. Indeed, they will meet their Lord. But if I find you people, completely ignorant. These wealthy people, those who are denying Sayyidina Nuh alayhi salam, जो थे नूह अलैहि सलाम का इनकार कर रहे थे, ये उनकी कैफियत थी। कुरान कहता है, वया कौमी मन यंसुरुनी मिनल्लाहि इन तरतुहुम अफला तज़क्करून, and O my people, who would rescue me from Allah if I repel them, so do you not think? हज़रत नूह अलैहि सलाम ने उनको बताया कि तुम तो कह रहे हो कि मैं उन्हें अपने से अलग कर दूं, भगा दूं, दूर कर दूं। अगर मैं उन्हें अपने से दूर कर दूं, भगा दूं, वनऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? बिकॉज दीज आर द पीपल दे बिलीव्ड इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की ज़ात पे यकीन किया, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा किया, तो मैं इन्हें अपने से दूर नहीं कर सकता। ये क्लियर कर दिया आपने। देन कुरान सेज, वला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल गैब वला अक़ूलु इन्नी मलकुम वला अक़ूलु लिल्लज़ीना तज़दरी अयुनुकुम लन युतियहुमुल्लाहु खैरा अल्लाहु अअलमु बिमा फी अनफुसिहिम इन्नी इज़ल लमिनल ज़ालिमीन। And I do not say to you, I have two treasures of Allah, I have the treasures of Allah, nor that I gain knowledge of the hidden, nor do I say that I am an angel, nor do I say to those whom your sights consider lovely, that Allah will never give them any good. Allah well knows what is in their hearts. If I do so, I would then be of the unjust. तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनके लिए चीज़ें क्लियर कर दी, उन्हें बता दिया कि तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी बातों को मानूंगा, मैं अगर तुम्हारी बातों को मानूंगा तो ये जुल्म होगा, नाइंसाफ़ी होगी, और जुल्म और नाइंसाफ़ी को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता है। Then when Nuh alayhi salam said to them, then they became more anger. वो हज़रत नूह अलैहि सलाम के ऊपर उन्होंने गुस्सा किया, वनऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और देन दे से, या आप हमेशा बताते रहते हैं कि अल्लाह का अजाब आएगा, ये होगा, वो होगा। देन why you just ask Allah subhanahu wa ta'ala to send us the punishment, कि अजाब भेज दे हम पे। इस तरह की बातें उन्होंने की। तो कुरान कहता है, क़ालू या नूह क़द जादलतना फ़अक्सरत जिदालना फ़ातिना बिमा तईदुना इन कुन्ता मिनस सादिक़ीन। They said, O Nuh, you have disputed with us and disputed in the extreme. Therefore, bring upon us what you promise us, if you are truthful. Look, वनऊज़ बिल्लाह, they started to laugh and Sayyidina Nuh alayhi salam. अब उन्होंने अल्लाह के नबी को चैलेंज देना शुरू किया कि आप तो अजाब की बात करते रहते हैं, आप दिखा भी तो दें कि अजाब क्या है। When they said so, याद रखें कि जब भी कोई नबी की बेहुरमती करता है, इफ anyone does a disrespect, shows the disrespect to the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah sends the azab. If you look at in all the prophets sent down to the earth, जितने भी अंबिया दुनिया भेजे गए, अगर आप उनकी तरफ नजर करेंगे, then you will find one thing, अल्लाह ने कब अजाब भेजा इस कौम, उनकी कौमों पे? जब उन्होंने अंबिया की बेहुरमती की, जब उन्होंने अंबिया की बेहुरमती की, उनकी ताज़ीम नहीं की, उनको डिसरेस्पेक्ट किया, तब अल्लाह ने उन पे अजाब भेजी। ये सारे अंबिया अलैहिस्सलाम में आप देख सकते हैं। तो फिर क्या हुआ? कहते हैं, कुरान कहता है, क़ाला इन्नमा यअतीकुम बिहिल्लाहु इन शाअ वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन। He said, Allah will surely bring that upon you if He wills,
and you will not be able to escape. अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह का अजाब आएगा ज़रूर, और जब अल्लाह का अजाब आ जाएगा तो उस वक्त तुम्हारे अंदर ये ताकत नहीं होगी कि तुम अल्लाह के अजाब से बच सको या अपने आप को बचा सको. अल्लाहु अकबर. देन से वला यनफउकुम नुस्ही इन अरदतु अन अंसह लकुम इन कान अल्लाहु युरीदु अन युग़वियकुम हुवा रब्बुकुम व इलैहि तुरजऊन. And my advice will not benefit you if I wish you good. When Allah wills to keep you astray, He is your Lord and to Him you will return. See, यहाँ देखें कि अगर अल्लाह किसी को हिदायत ना दे, अगर अल्लाह किसी को तौफीक ना दे, तो फिर वो सीधी राह पे नहीं आ सकता, वो सीधे रास्ते पे नहीं आ सकता. बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहु व तआला दैट अल्लाह मेड यू मुस्लिम्स. अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया. बी थैंकफुल ऑन इट. इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने चाहा कि हम हिदायत पे आएँ, अल्लाह ने चाहा कि हम सीधे रास्ते पे आएँ. Allah wanted us to be on the divine path, to be Muslims. It is a favor of, biggest favor of Allah subhanahu wa ta'ala. If you see in this world, अगर आप दुनिया में देखें तो there are billions of people. They have eyes, they have ears, they have brains, they are intellect people, there are many intelligent people. Okay? लेकिन उनमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ईमान नसीब नहीं है, जिनको अल्लाह की ज़ात पे यकीन करना नसीब नहीं है. हालांकि आंखों से देखते भी हैं अल्लाह की निशानियां, कानों से सुनते भी हैं अल्लाह की निशानियां, दिमाग भी है उनके पास, फिर भी उनके पास ईमान नहीं है. ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया. It is a favor of Allah that Allah made us Muslims. Allah guided us towards His divine path. अल्लाह ने अपने सीधे रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई. ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का ये बहुत बड़ा करम है. That's what he's saying. Quran is mentioning here. And then am yaquluna iftara qul in iftaraytuhu fa alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun. They dare say that he has fabricated it. He had fabricated it. Say, if I may have fabricated it, then my sin is upon me and I am unconcerned with your sins. They were not only disbelieving and rejecting the dawah of Sayyidina Nuh alayhi salam, they started to make a wrong attempts on the Sayyidina Nuh alayhi salam. They started to say, no, whatever you are saying, it is fabricated by yourself. Allah haven't sent anything like what you are mentioning here. Allah ने जैसे आप कह रहे हैं वैसे कुछ कहा नहीं है, बस आप अपनी तरफ से बना रहे हैं. तो हज़रत नूह अलैहि सलाम ने कहा कि अगर बात ऐसी है, अगर मामला ऐसा है, तो अगर इस तरीके की बात है, अगर इस तरीके का मामला है, तो हज़रत नूह अलैहि सलाम ने कहा कि तुम इसके ज़िम्मेदार नहीं हो, तुम इसके ज़िम्मेदार नहीं हो, मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, और अल्लाह तबारक व तआला भी जानता है. लेकिन जो तुम्हारे गुनाह है, उन गुनाहों का मुझ पे कोई वबाल नहीं, क्योंकि माई रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू इन्वाइट यू टुवर्ड्स दीन, टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहु व तआला. मेरी जो जिम्मेदारी थी वो ये थी कि मैं तुम्हें दीन की तरफ बुलाऊं, और मैंने तुम्हें बुलाया, दावत दी. लेकिन अगर तुम दावत को कबूल नहीं कर रहे हो और अगर तुम दावत पे अमल नहीं कर रहे हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता. एंड देन आफ्टर दैट Allah subhanahu wa ta'ala sent a wahi on Sayyidina Nuh alayhi salam. Then these people are done. ये लोग जो आपका इनकार कर रहे हैं, इनका मामला हो गया ख़त्म. अब मैं आपको जैसे बता रहा हूँ आप वैसे करें. कुरान से वो ऊहिया इला नूहिन अन्नहु लन युमिन मिन कौमिका इल्ला मन क़द आमना फला तबतइस बिमा कानू यफ़अलून. And it was divinely revealed to Nuh that none of your people will become Muslims except those who have already accepted faith. Therefore, do not grieve at what they do. अल्लाह ने बताया कि ऐ नूह अलैहि सलाम, अब जो है ये लोग ईमान लाने वाले नहीं है. जितने ईमान ले आए वही, उसके बाद के जो लोग हैं वो ईमान नहीं लाएंगे. तो आप उनके पीछे अब अपनी मेहनत सर्फ ना करें. Look at here, brothers. You know how long Sayyidina Nuh alayhi salam was between in his qawm and he was preaching. Quran has mentioned 950 years.
950 साल, अल्लाह अकबर, 950 साल अपनी कौम में आप रहे, 950 साल रहे, यानी सैकड़ों साल, hundreds of years he was inviting people towards Allah. You know how many people accepted Islam at that time? आप जानते हैं कि कितने लोगों ने उस वक्त इस्लाम कबूल किया था? There were less than 100 people. 100 से भी कम लोग थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उस पूरे सैकड़ों साल की तबलीग में सिर्फ इतने लोगों ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन अल्लाह ने बताया कि आपकी ज़िम्मेदारी पहुंचाना है, आपने पहुंचा दिया। अब आपके ऊपर कोई इसका ऐसा मसला नहीं है कि सिर्फ इतने कम लोग इस्लाम लाए, आपका काम था दावत देना, आपने दावत दे दी। सो दैट्स व्हाट वी शुड कॉन्सनट्रेट व्हेन वी आर डूइंग द दावा। अगर 10 लोग नहीं आते हैं, 15 लोग नहीं आते हैं, ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, तो नो यू डू, इफ़ यू आर डूइंग फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इट डजंट माइंड। एंड इवन आई वांट टू से दिस पीपल जो यूट्यूब के ज़रिए से और चैनल्स के ज़रिए से दावत को पहुंचाना चाहते हैं, डोंट गो बिहाइंड दिस व्यूज़। ये व्यूज़ हुए, इनके पीछे मत भागिए, क्योंकि एक आदमी ने भी सुना तो इंशाल्लाह वो आपके लिए बाइस बरकत होगा, बाइस नजात होगा। एक भी सुधर गया तो हमारे लिए भी बाइस नजात बरकत होगा। कितने लोग देखेंगे, कितने नहीं देखेंगे, इससे नहीं। इफ़ यू आर डूइंग दिस यू मेकिंग इट श्योर। अगर आप कर रहे हैं तो उसे आप महफूज करें, दैट इज ए गुड थिंग। एक अच्छा काम है कि जो काम हो रहा है वो महफूज हो रहा है, जो बातें पहुंच रही हैं वो सेव हो रही हैं। कभी ना कभी जब किसी को मौका मिलेगा, तौफीक होगी, वो देखेंगे और आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। वी आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर डू व्हाट अपॉन अस, द रिजल्ट यू लीव ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमें काम करना है, नतीजा अल्लाह के हाथ में छोड़ देना है, और अल्लाह है उसका अंजाम वो नतीजा जाहिर करने वाला। एंड अल्लाह नोज व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू शो दिस रिजल्ट। कभी कभार ऐसा होता है कि आज से आप काम कर रहे हैं, आफ्टर ये वाइल यू विल सी द रिजल्ट। आज आप काम करना शुरू करें, मेहनत करना शुरू करें, फिर एक अरसे के बाद जा करके आपको जो है उसके नताइज देखने को मयसर आते हैं, उसके नतीजे देखने को मिलते हैं। सो ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत से हमें समझ में आता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। देन अल्लाह आर्डर्ड नूह अलैहिस्सलाम वस्नाइल फुल्का बिअयुनिना व वहयिना वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून, and build the ship in front of us and by our command, and do not speak to me regarding the unjust, they will surely be drowned. अल्लाह ने कहा कि ऐ नूह अलैहिस्सलाम, अब आप कश्ती बनाना शुरू कीजिए, अब आप कश्ती बनाइए। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाना शुरू करते थे, there was no water, वहाँ कोई पानी नहीं था। These people they started to watch Nuh alayhi salam, they started laughing at Nuh alayhi salam कि यहाँ पानी तो नहीं है, कश्ती कैसे बना रहे हैं। And Allah subhanahu wa ta'ala, this ark was one of the unique ark was built on the earth. ज़मीन पे बनाई गई जो कश्तियाँ, उनमें से एक मुनफरिद कश्ती थी हज़रत नूह अलैहि सलाम की। क्यों? क्योंकि कुरान कहता है कि आप हमारी रहनुमाई में बनाइए। गोया कि अल्लाह इज़ गाइडिंग टू सैयदना नूह अलैहि सलाम that how should you build this ark, उस कश्ती को आपको कैसे बनाना है। दिस वॉज द फर्स्ट एवर आर्क वॉज बिल्ड, इट वॉज बिल्ड बाय सैयदना नूह अलैहि सलाम। सबसे पहली कश्ती जो बनाई गई ये नूह अलैहि सलाम की तरफ से है। तो अब आप देखें कि अल्लाह ऑर्डर टू नूह अलैहि सलाम, अल्लाह ने हुक्म दिया कि कश्ती आपको बनानी है। एंड देन अल्लाह सेड बिअयुनिना, व्हाट डज इट मीन्स कि हमारी निगहबानी में, और हम उसे देखेंगे कि आप कैसे बना रहे हैं। इट मीन्स हम आपको रहनुमाई करेंगे कि वो कश्ती कैसे बनानी है, वो कश्ती कैसी होनी है। अब ऑब्वियसली दिस वाज अ यूनिक आर्क, वो एक मुनफरिद कश्ती थी जिसमें हर जानदार के एक एक जोड़े को सवार करने का हुक्म दिया गया, एक एक जोड़े को हर जानदार से, चाहे जो जानवर हैं, जानदार हैं, इंसान हैं, और जो ईमान वाले हैं उनको सवार करने का उसमें हुक्म दिया गया। तो उस वक्त हज़रत नूह अलैहि सलाम ने कश्ती बनाई और अल्लाह के हुक्म से आपने ये कश्ती बनाई। एंड देन व्हाट हैपेंड, कुरान सेज हियर, एंड द कुरान सेज लुक हत्ता, एंड देन कुरान सेज व यस्नउल फुल्का व कुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमिही सखिरू मिनहु क़ाल इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून। एंड नूह builds the ship, and whenever the chiefs of his people passed by him, they used to laugh at him. He said, if you laugh at us, then a time will come when we will laugh at you, just as you laugh.
अल्लाह अकबर। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे होते तो इनकी कौम के काफिर जो होते, जो इन पे ईमान नहीं लाते थे, हियर आई वांट टू मेंशन वन थिंग. What does kafir means? Kafir means the one person who is not believing a particular belief. जैसे we believe in Allah subhanahu wa ta'ala. If someone is not believing in Allah subhanahu wa ta'ala, then he is a kafir. He is kafir. And we are the mu'mins. We are the believers. We believing in Allah subhanahu wa ta'ala. अब इस लफ्ज़ काफिर को लेकर के बहुत सारे लोग सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में और दूसरी जगहों पे गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश करते हैं और इस तरह की बातें करने की कोशिश करते हैं। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक के ये जो है कुरान सारे जो नॉन मुस्लिम्स है वनऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक उनको मार देने का हुक्म देता है, सारे नॉन मुस्लिम्स को वनऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कत्ल करने का हुक्म देता है। नो, कुरान नेवर सेड दिस। कुरान ने कभी भी ऐसी बात नहीं की। Whenever Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned kuffar here in Al-Quran Al-Kareem, there is a particular background for it. यहाँ उनके लिए ख़ास पस मंज़र है जिनके लिए हुक्म बयान किया जा रहा है। It is not for every single person who is not believing in Allah subhanahu wa ta'ala that this ruling will apply for him. No, it is not like this. इस तरीके से हरगिज़ नहीं है कि ये अहकाम सब पे जारी हो जा रहे हैं, बल्कि कुरान ने जहाँ जहाँ जिक्र किया वहाँ शराइत हैं, कंडीशन से बताया है कि फ़हूम समटाइम्स व्हेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज मेंशनिंग, इट इज़ मेंशनिंग ए स्टोरी विच पास्ट, जो एक वाक़या गुजर चुका है, अल्लाह कहीं उसकी हिकायत बयान फरमाता है कुरान मजीद में। तो इसको लेकर के लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम दूसरों को कत्ल करने का हुक्म देता है। नो, इस्लाम कभी भी इसका हुक्म नहीं देता कि आप किसी बेगुनाह पे हथियार उठाएं या किसी बेगुनाह को कत्ल करें या किसी बेगुनाह को सज़ा दें। ऐसा आप हरगिज़ नहीं कर सकते और इस्लाम हमें इसकी इजाज़त भी नहीं देता। इस्लाम डजंट अलाउ एनी वन ऑफ हिज फॉलोअर्स दैट दे शुड हार्म एनी इनोसेंट, कि वो किसी बेगुनाह को सज़ा दें, तकलीफ़ दें। सो इस्लाम इज़ कम्प्लीटली पीस। इस्लाम का नाम ही इस्लाम के माने ही अमन के होते हैं, सलामती के होते हैं। लेट्स गो फॉरवर्ड। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते थे तो वो लोग जब देखते थे कि नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं, they used to laugh on Nuh alayhi salam. They used to say, Nuh alayhi salam, you are building a ark, you are building a ship. Where you gonna use it? There is no water, there is no ocean here, there is no sea here. वो कहते कि यहाँ कोई समंदर नहीं है, आप ये कश्ती चलाएंगे कहाँ? कश्ती तो बना रहे हैं। Then हज़रत नूह अलैहि सलाम used to reply them. हज़रत नूह अलैहि सलाम उनको जवाब देते, उनको फरमाते कि आज तुम हंस रहे हो, इट इज़ योर डे दैट यू आर लाफिंग ऑन मी, एंड देन देयर विल बी टाइम कम व्हेन वी विल लाफ ऑन यू एज यू लाफ्ड ऑन अस। एक वक्त आएगा जब हम तुम पे हंसेंगे जैसे कि तुम आज हम पे हंस रहे थे। अब तुम्हें समंदर नज़र नहीं आ रहा है, पानी नज़र नहीं आ रहा है, दरिया नज़र नहीं आ रही है, लेकिन वक्त आएगा कि यही एक कश्ती होगी जो पानी से, उस तूफान से तुम्हें बचाएगी। तो यही कुरान ने यहाँ पे इसका जिक्र किया। एंड देन ही सेड फसौफ तअलमूना मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम। So you know, so now you will come to know upon whom comes the punishment that disgraces him, and upon whom descends the punishment that continues forever. Hazrat Nuh alayhi salam ने कहा, you will know, you are laughing now, then just wait for a while, you will see the punishment of Allah, the azab of Allah subhanahu wa ta'ala, it will reach to which people, ये किन्हें पहुँचेगा और कौन इस अजाब का शिकार होंगे और कौन इस अजाब से हिलाक होंगे, इसका आपने तस्करा फरमाया, इसकी आपने उन्हें खबर दी। एंड देन अल्लाह सुबहान जब तूफ़ान आने का टाइम हुआ, कुरान कहता है हत्ता इज़ा जाअ अमरुना वफ़ारत तन्नूरु कुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्ली ज़ौजैन इत्नैन व अहलक इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौलु व मन आमन व मा आमन मअहु इल्ला क़लील। To the extent that when our command came and the oven overflowed, we sat board into the ship, a couple, male and female, from every kind, and your family members, except those upon whom the word has been passed, and all other Muslims, and only a few Muslims were with
him with Sayyidina Nuh alayhi salam. Allahu Akbar. Hazrat Nuh alayhi salam के साथ उस वक्त बहुत चंद लोग थे. There were very few people who believed Nuh alayhi salam, who believed in Allah subhanahu wa ta'ala. Those were Muslims, जो मुसलमान थे उस वक्त बहुत ही कम थे. अल्लाह ने कहा अब वक्त आ रहा है, आप कश्ती में लोगों को सवार करना शुरू कीजिए. और फिर हुआ कि हर जानदार का, हर जानवर का एक एक जोड़ा, एक नर एक मादा, एक मेल और फीमेल, इनको लें और इन सबको कश्ती में आप सवार कराइए. जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सवार कराना शुरू किया, तब भी लोगों को मजाक सूझी. तब भी लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज डूइंग. दे वर यूज्ड टू लाफ ऑन नूह अलैहिस्सलाम. यही होता है कि इवन टुडे इफ यू जस्ट ओपन योर माइंड, इफ यू कैन सी, यू सी millions of people will be laughing when you are praying, right? Millions of people will be laughing on you when you are worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. जब तुम इबादत करते हो तो बहुत से लाखों लोग हंस रहे होंगे, उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये कर क्या रहा है, लेकिन हमें उसे नहीं देखना है कि वो हंस रहे हैं. इफ़ वी आर बिलीवर्स, हम मुसलमान हैं, तो हमें ये देखना है कि हमें हमारा रब क्या हुक्म देता है, हमें हमारा अल्लाह क्या हुक्म देता है, हमें हमारा परवरदिगार क्या हुक्म देता है. क्योंकि ये जो आज आप पे हंस रहे हैं, जब आप इबादत करके अल्लाह को राज़ी करके जन्नत में जाएंगे तो आपके हंसने का वक्त होगा और फिर इनके रोने का वक्त होगा. तो आप ये हंसने वालों की फ़िक्र मत करें कि ये दुनिया तो हंसती रहती है. दुनिया हंसेगी आप पे, दुनिया मजाक उड़ाएगी आपके, दुनिया आपके चेहरे का, आपके लिबास का, आपके अंदाज का मजाक उड़ाएगी. उड़ाने दें उन्हें. अल्लाह तबारक व तआला आपको, हमको, सबको तौफीक अता फरमाए कि हम जो है दीन पे अमल करते रहें. वी विल कंटिन्यू कैरी ऑन दिस सेम टॉपिक इंशाअल्लाह अज़ीम टुमारो. आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस हाउ द फ्लड कम. तूफ़ान, वो जो सुनामी आई थी उस वक्त, वो बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा तूफ़ान है वो तूफ़ान आया तो कैसे आया, किस किस जगह पहुंचा और क्या हालात हुए और कैसे नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले उन्होंने नजात पाई. ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस डिटेल इंशाअल्लाह अज़ीम विल कैरी ऑन फॉर टुमारो. एंड इन टुमारोज सेशन ऑफ रमज़ान विद अल कुरानुल करीम वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस स्टोरी ऑफ सैयदना नूह अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह अज़ीम. आज के लिए हम इसी पे इक्तिफा करते हैं. अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जो बातें हमने कही सुनी, अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए. और अगर इसमें कोई ख़ता हो, गलती हो, अल्लाह ताला अपने हबीब साहिब औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ फरमाए. अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग़. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.